जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज जिले कुलगाम में आज नया दफ्तर का इनेकाद किया गया है, जिसमें पार्टी के स्पोक्स पर्सन मुंतजिर मोहिद्दीन इंजीनियर आकिब अहमद डार को इंचार्ज कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी का बनाया गया, जिसमें बहुत सारे नौजवानों ने आज अपनी पार्टी में शमूलियत की और आकिब अहमद डार ने नुमाइंदों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट अरशीद मल्ला के साथ जिले कुलगाम से। अल्ताफ साहब जिंदाबाद, आकिब साहब जिंदाबाद, इंजीनियर साहब जिंदाबाद, इंजीनियर साहब जिंदाबाद, कर में Saying the one thing, BJP has no A team in the Jammu and Kashmir where we can become the B team. They don't have the A team in the Kashmir. These are making the propaganda. These are the fundas, simply fundas. BJP has no clear ground in the Jammu and Kashmir. You have seen in the recently elections when they don't have the A team. How can we become the B team of the BJP? आप मान रहे हैं कि वो आपकी सबसे पहले आज जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम रखा है, इसका बुनियादी मकसद क्या है? उसका बुनियादी मकसद जनरली ये है, हमने देखा है पिछले 3 डेकेडों से कुलगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें खाली एक ही पार्टी लीड कर रही है। उसमें उन्होंने डायरेक्टली कुछ बंदों को हायर करके रखा है। हर किसी गांव में उनके पास 2-4 बंदे हैं जो उनको वोटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। एटलीस्ट 33% वोटिंग होके उनको 12 या 13% वोट्स लेके वो जीत जाते हैं। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हमने मैक्सिमम यूथ को इन्वॉल्व किया है। दिस टाइम यू विल सी देयर विल बी द चेंज इन कुलगाम constituency. I am giving in this written statement that this time Kulgam has a change and it has to be changed now. From last 3 decades there is only one scenario we are seeing from each and every angle. From each and every angle we are seeing these people have hired some persons in administration. There are some problems in administration. There are their persons, they are doing hue and cry when other party person is going there. In Kulgam there is no scope of national conference. Only one party, that is CPIM, which has ruled this Kulgam constituency from last 3 decades. Now people has clearly given them message. Today you have seen lot of people coming here and joining us in a very meaningful meaning. This gives a clear message to the Kulgam constituency that this time message from the party spokesperson Muntazir Mohiddin Saab and the president Saab Sayyid Altaf Bukhari Saab. There is a clear message for the people. People must understand that thing. At that time, the BJP has given the ST2 status to the party communities. From Rajouri side, BJP was counting, we have at least 5,50,000 voters. For that purpose, when they shown we have no ground in these areas, they have participated with Altaf Saab, they have talked with Altaf Saab. उन्होंने एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कहा था, वो भी तो मुसलमान ही थे। वहाँ से 5.5 लाख लोग जो थे जिनको ST स्टेटस मिला था, उसमें उन्होंने 5.5 लाख के लिए अल्ताफ साहब से बात की थी। उन्होंने ये सोच के एक माहदा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, अगर वहाँ से 5.5 लाख वोट आएंगे। Saying that अपनी पार्टी is beating by BJP. How you are seeing this? I am clearly saying the one thing, BJP has no A team in the Jammu and Kashmir where we can become the B team. They don't have the A team in the Kashmir. These are making the propaganda. These are the fundas, simply fundas. BJP has no clear ground in the Jammu and Kashmir. You have seen in the recently elections when they don't have the A team. How can we become the B team of the BJP? आप मान रहे हैं कि वो आपकी गलती थी, अपनी पार्टी की गलती थी, जिस वजह से आपने बीजेपी को सपोर्ट किया था? ये गलती नहीं, पॉलिटिक्स में आपने देखा होगा, अगर हमने लास्ट में देखा PDP ने भी बहुत फंडा चलाया कि अगर आपको बानी हाल से दूर BJP को रखना है तो आपको PDP को वोट देना है। तो लोग उसमें इमोशनल होके PDP को उन्होंने वोट दिया। उसके बाद BJP तो PDP नहीं लाया। आज वो कह रहे हैं हम वो है, हम इस्लामी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उमर अब्दुल्ला साहब थे, वो तो BJP की हुकूमत में ही उन्होंने सियासत सीखी है, वो तो वजीर खारजा रहे वहाँ पे। आप उस बात, आई एम रिक्वेस्टिंग टू द मीडिया फ्रेटर्निटी, आप उस बात को भी चलाओ। अगर आप अपनी पार्टी को टारगेट कर रहे हो, ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मीडिया फ्रेटर्निटी इज टारगेटिंग द अपनी पार्टी, तो आप पार्टी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। जो ग्राउंड रियलिटी है, जो हुआ है वही हम बोल रहे हैं। आई एम गिविंग यू द क्लियर रिस्पॉन्स। उमर अब्दुल्ला साहब का भी यही ग्राउंड रियलिटी है, NC नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी यही ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, उसने वाजपेयी की साहब की सरकार में 96 में वो वजीर खारजा रहे हैं, वहीं से उन्होंने सियासत सीखी है, तभी जाके वो श्रीनगर आए और यहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर बने। महबूबा होम मिनिस्टर साहब हमारे रहे, उन्होंने सेंटर से हुकूमत सीखी है। एक क्लियर मैसेज में लोगों को देना चाहता हूँ, दे आर ट्राइंग टू बेफूल द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ द यूथ हैज गिवन देम द क्लियर मैसेज, दे हैव अंडरस्टैंड दैट थिंग दैट व्हाट देयर मस्ट बी अ रिलेशन विद द सेंटर। हमें ये बात माननी पड़ेगी
मैं क्लियरली आपको बोलूंगा, अगर कोई नाराज भी होगा मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा। देयर मस्ट बी ए क्लियर रिलेशन विद द सेंटर। अगर हमको कहीं कुछ चीज़ वहाँ से लाना है तो वो सेंटर से ही आएगा। अगर आप देखोगे, एक बात मैं क्लियर बोलूंगा, कल ही बजट जो पास हुआ उसमें पीएम किसान, ये पीएम जो आवास योजना की स्कीम थी, वो पोर्टल पिछले 3 साल से बंद था। अगर वो पोर्टल 3 साल के बाद खुला, मेरे टीम मेंबर्स को एट लीस्ट आई अटेंडेड 1500 कॉल्स रिगार्डिंग दैट मैटर। वो तो सेंटर से ही तय होके आ चुका है। ये क्या ला सकते हैं? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ उसने 370 का नारा दिया। अब उन्होंने लोगों को विफोल करने के लिए दे आर ट्राइंग टू